I did the 2017 in order. What you did? You remember you had 3 sheets? Yeah. So we did together one, and the other 2 sheets I practiced. Okay, got it. So everything clear? Any doubt anywhere? One thing I had I think for region, there was no selection to be made. Yes. So there is no data category for region. Oh, it's not a global then? It will not come under that? Yeah, it's not there. Oh, okay. Okay. Uh, So we wrapped up yesterday at the first visual, right? I'm just sharing my screen with you. So where would I see my saved work on the cloud? I didn't see that. I was wondering, did I? So Jata, we have not published it yet on the cloud. Oh, okay, got it. Okay. So when I So saved it, it whatever. got saved in my public, in my local machine. Is that how it is? Yes. So Okay. you will just open that again and you will just work on that till last, and in the last we will publish. Oh, okay. And then we publish is when it gets onto the cloud. Yes. Got it. Okay. Okay. Makes sense. So this is the first visual we created. It was clear to you, right? Right. Okay. So we did not discuss much. We just discussed these three options, right? The first Right. visual and these three options. Okay. So today I will tell you something related to the date. Okay. Okay. So in case we are taking any field uh, with date, what happens? What are the additional options we would be getting here? Okay. So that is the thing we will talk about. Like we take sales not state wise, but for example, date wise. Got it. Right? If we are doing this, you will see that these options have been added. Only three were there earlier. One, two, three. Now we have Right. these also. Got Okay. it. So ये options जो हैं ये date से आते हैं. Got it. Only date से. अब क्या मतलब है इसका? Click to turn on drill down. So basically we have supplied year, quarter, month and day, all the fields to the axis. Right. And here it's taking year on the Got it. y-axis. Sure. So when you drill it down further, what happens? You can go to quarter, month, and day. Quarter. So this is the reason that we have taken date and we have supplied everything. It is giving us these options, and you can go back also. Okay. Okay, so these are the drill down options which you get only with the date fields. Oh, okay. Okay, so this is one thing. Okay, now come to this visual. There is a visual called question and answer, this one. Okay, now suppose you have a lot of data to analyze. ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन कौन से ग्राफ बनाऊं, या ग्राफ बना के अगर आप सारे देख भी लोगे कुछ 15-20 तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. ठीक है, फाइनल रिपोर्ट में हम कभी भी 15-20 ग्राफ नहीं रखते हैं. सही है. हाँ. फाइनल रिपोर्ट में हम वो ग्राफ्स रखते हैं जो मीनिंगफुल हैं, जो हमारे काम के हैं. But that number can never be 15 and 20 because then what is the meaning of analysis? Right. Right? तो क्विकली डेटा को अगर एनालाइज करना है या ये समझना है कि क्या चीज काम की है, क्या दिखानी है, तो हम ये वाला विजुअल यूज करते हैं. ठीक है, इसमें आपको कुछ भी मैनुअली प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ यहाँ पे ना इंग्लिश में लिखोगे, लाइक यू विल राइट प्रॉफिट बाय सेगमेंट एंड यू एंटर एंड यू गेट योर विजुअल. Oh, okay. Okay, so in normal English language, you can put your query and see what is the result. And if it is making any sense, if there is any information you want to provide on your desktop in your report, then you can plot this visual manually for your report. Okay. So basically, this is a visual for the quick analysis of data. Right. Okay. By default, it shows column chart always. ठीक है, इसके आगे हम और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे प्रॉफिट बाय सेगमेंट बाय शिप मोड. आपको शिप मोड भी इंक्लूड करके देगा. ठीक है, अगर आपको टाइप डिफाइन करना है चार्ट का, व्हाट काइंड ऑफ विजुअल यू वांट टू सी, अगर आप बाय डेट करोगे तो यहाँ पे सिंस वी हैव 3, फिर क्या होगा? अभी करके देखते हैं.
ठीक है, अगर हमें इसको विजुअल का टाइप भी बताना है कि हमें ये दिखाओ, सो एज मैट्रिक्स, एज मैप, एज स्टेक चार्ट, वो भी हम लिख सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इट विल शो कॉलम चार्ट। ठीक है, अभी आप क्या कह रहे थे, मुझे क्या लिखूं? अगर बाय डेट करना है हाँ, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि do we have to choose the year and all, कि वहां पे drill down दिखाएगा and then can we do it दिस from इज there? प्रॉफिट बाय ऑर्डर डेट। Okay. Oh, ordered. हाँ, ठीक है। यहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं है इसमें ना, ड्रिल डाउन वाले। इट्स नॉट अ विजुअल, इट्स नॉट इट्स नॉट गिविंग अस दोज ऑप्शंस। वो आपको उन विजुअल्स में ही मिलेगा। देखो यहाँ पे है ही नहीं वो, राइट। यहाँ पे सिर्फ वही ऑप्शंस आ रहे हैं, एक्सपोर्ट डेटा एंड रिमूव वाला। गॉट इट। हाँ, ठीक है, यहाँ पे इनफैक्ट डिसेंडिंग असेंडिंग वाला भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बाय ईयर कर सकते हैं, बाय ईयर बाय मंथ हो सकता है। आपको जो करना है करके देखो, मैं आपको कैच बताती हूँ ये काम कैसे करता है। तो जहाँ पे काम ना करे आपको समझ में आएगा क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट बाय ईयर किया तो इसने खाली प्रॉफिट दिखाया एक ही ईयर का। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसमें कैच क्या है। यू शुड राइट द करेक्ट नेम ऑफ द कॉलम्स। ओके, इट शुड मैच। यस, दैट्स इट। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो ना सुजाता, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो टॉप 5 कस्टमर नेम, तब भी ये दिखाएगा। मतलब इसको टॉप 5 जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो समझ आते हैं। ओके। एंड कस्टमर नेम इज द नेम ऑफ द कॉलम। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इसने जो टॉप 5 दिखाए हैं वो आपको बाय सेल्स दिखाए हैं, नॉट बाय प्रॉफिट। ये भी ध्यान में रखना। स्पेसिफाई नहीं किया। हाँ, बिकॉज़ हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि बाय व्हाट कैटेगरी वी वांट टू सी। बाय डिफॉल्ट अगर देखो, बाय डिफॉल्ट अगर मैं आपसे भी पूछूं तो हम नॉर्मली सेल्स से ही बात करते हैं। राइट। हाँ, ठीक है, जब हम इसमें डेक्स डिस्कस करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी कि टॉप 5 कस्टमर्स एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करने हैं। ओके ओके। ठीक है, वो एक केस है, हमने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये एक आपका टूल है जिसको आप क्वेरी एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो। ओनली द कैच इज यू शुड राइट द करेक्ट नेम्स ऑफ द कॉलम। गॉट इट। ओके। And it is not case sensitive or anything. Just I should just have the column name right. Right. ठीक है, तो दिस इज Q&A। दिस इज, मैं साथ साथ नाम लिखती हूँ, हम भूलेंगे नहीं। फर्स्ट विजुअल, राइट। तो ये Q&A आपको समझ आ गया? Yes. ठीक है, अब मैं आपको ये लाइन चार्ट दिखाऊंगी। ठीक है, इस लाइन चार्ट में फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे ऑर्डर डेट एंड सेल्स। ठीक है, सॉरी मेरा कंट्रोल लूज हो गया। ऑर्डर डेट एंड सेल्स लिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इट इज शोइंग मी सेल्स ईयर वाइज 14, 15, 16 एंड 17। राइट। ठीक है, अभी यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट सेक्शन वेयर वी हैव प्लॉटेड द फील्ड्स। This is the second section from where we can do the formatting part. In the third section named analytics, when we click on it, यहाँ पे options दिख रहे हैं आपको। Right. जब आप इस थर्ड वाले टैब में जाओगे ना एनालिटिक्स में, तो जिस भी विजुअल पे इस टाइम आप हो, जैसे एज ऑफ नाउ वी आर ऑन दिस लाइन चार्ट, राइट। वो विजुअल जिस एनालिसिस के लिए क्वालिफाई करेगा, मतलब पावर बीआई इंजन को जब ये लगेगा कि इसके बेसिस पे हम कुछ और भी कर सकते हैं, वो आपको वही ऑप्शंस दिखाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये वाले ऑप्शंस आपको किसी और ग्राफ में भी दिखे। गो बैक टू योर फर्स्ट विजुअल। ठीक है, इसके थर्ड में जाओगे तो देखो खाली कांस्टेंट लाइन आ रहा है। Got it. हाँ. Because the information, the data, the column we supplied to this visual do not qualify for any other thing. Got it. हाँ. Okay. तो यहाँ पे इस वाले में क्या हो रहा है, ये जो विजुअल है इसमें उसको इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि वो फोरकास्टिंग कर सकता है, इसीलिए फोरकास्टिंग दिखा रहा है ये। ठीक है, तो अब हम फोरकास्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम उसको हाँ, तो अगर ये अभी ऑर्डर डेट में why am I seeing 2 tick marks? ऑर्डर डेट यहाँ पे, हाँ, क्योंकि ये बाहर वाला वो उस सिंबल पे भी बना रहा है। हम एक ही सेलेक्ट करते हैं, देखो वो खाली उसका दिखाने का तरीका है। एक्चुअली इसमें ये हायरकी होती है ना अंदर, एक उसका आता है टिक, पूरी हायरकी सिलेक्टेड है ना। इस डाउन एरो को खोलो, ये 2 इसलिए आ रहे हैं बिकॉज ये हायरकी भी सिलेक्टेड है। गॉट इट। ओके, ठीक है। हाँ, तो फोरकास्टिंग पे हमने क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे वी विल टेल इट हाउ मेनी ईयर्स
I need to forecast. Like I added 5. Forecast. Okay. Can you go back? Where was the forecast? आपने क्या किया? In the third tab, analytics में यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस हैं, इनमें जो forecast है उसको आप ओपन करोगे, ठीक है? और यहाँ पे टाइम फिल करोगे कि कितने और सालों का you want to predict. Got it. हाँ. ठीक है? And this is the confidence level. Are you aware of Six Sigma concepts? Not as much. Not as but much. Yeah, I have a fair idea. हाँ, तो confidence level होता है the kind of accuracy you want in this forecasting. Okay, so we'll take 99%, which is the highest. Okay. And we will click on apply. तो ये यहाँ पे coming 5 years का forecasting आ गया है. And since we ignored last, that means हमको past years के नहीं चाहिए, सिर्फ future years के चाहिए. Is that what it means? No. अगर है ना past का आ रहा है? नहीं, अगर आप go up, there was one tab. हाँ, यहाँ पे ignore last. हाँ, आप ignore last 2 years कर दो और apply, तो ये prediction change हो जाएगी. मतलब हम ये कह रहे हैं कि only on the basis of first 2 years, ignoring the last 2 years and considering the rest, you forecast. तो ये जो forecasting है ये खाली इनको consider. Got it? Okay, right. Okay, ठीक है. हाँ. Right? तो अगर हम इसको 0 करेंगे, then it will consider all and predict, and that prediction would be different. So why is it only going up till 2014? हमने why not beyond? यहाँ पे past years में data, because we have data from 2014 only, ना? We have data for 4 years, 2014 to 17. Okay, got it. ठीक है. हाँ. Okay. Okay. So one more thing. When you come to this first section, okay, here like in the Excel sheet and pivot table, we have the option to show count maximum minimum average. We have this also here. Okay. When you right click on this, you will get this option. Okay. तो ये forecasting clear है आपको? Right. Okay. So now if I ask you that show me the customers using a visual, of course, when we are talking about Power BI, who have given us only profit. So show me that cluster. Any idea what will you show? How will you try to show it to me? Because now onwards, I will ask questions from you, ताकि आपका थोड़ा दिमाग इसमें लगना शुरू हो जाए. ठीक है. Sure. हाँ. थोड़ा सोचोगे तो अच्छा लगेगा. Definitely, yeah. अभी हमें क्या करना है? अभी हमें ये करना है कि वो कस्टमर्स जिन्होंने हमें प्रॉफिट दिया है, मतलब लॉस नहीं दिया है, हमें ये देखना है कि वो ज्यादा कहाँ पे क्लस्टर्ड है, किस रेंज में क्लस्टर्ड है. ओके, ठीक है. तो विच विजुअल यू थिंक यू शुड प्लॉट? Q&A? नो. हाँ ना? नो, नॉट Q&A. आपने ये खोला हुआ है अपने सिस्टम पे? Oh, नहीं, I did not. Okay. तो अगर नहीं खोला है तो देखो यहाँ पे ये विजुअल्स है ना. जब भी आपको ऐसे सोचना है कि मुझे ये दिखाना है, मैं कौन सा विजुअल यूज करूं, राइट? तो आप 1 by 1 ना इन सब पे जाना ऐसे एंड गिव इट अ थॉट कि ये किसके लिए सही होता है, ये किसके लिए. इनफैक्ट आई विल सजेस्ट व्हेनेवर यू प्रैक्टिस पावर बीआई एट होम, यू जस्ट ट्राई टू मेक दैट अंडरस्टैंडिंग कि ये विजुअल इसके लिए यूज होता है, ये इसके लिए. उससे क्या होगा, व्हेनेवर यू विल गेट जस्ट एनी सॉर्ट ऑफ डेटा इन फ्यूचर, you would be able to do quick analysis because you know the USP of that particular visual. Right. Okay. Right. So in this case, like we are using a scatter diagram, scatter chart. Okay. Zara, just give me a second. Huh? 1 second में. Sure. हाँ, आई एम बैक. ओके, तो हम क्या करेंगे इस केस में, वी विल यूज स्कैटर डायग्राम, बिकॉज स्कैटर चार्ट का यूज क्या होता है, यूएसपी क्या होता है, वो हमें क्लस्टर बना के देता है और उससे हम रेंज आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, हमें वो कस्टमर्स चाहिए, उनके नाम चाहिए जिन लोगों ने हमें प्रॉफिट दिया है. तो सबसे पहले हम कस्टमर नेम को सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. फिर प्रॉफिट लेंगे और साथ में हम सेल्स लेंगे. हम ये देखेंगे कि कितनी सेल्स पे कितना प्रॉफिट हो रहा है और किस कॉम्बिनेशन में क्लस्टर ज्यादा है. अब इस केस में क्या हो रहा है,
हम ये जो प्रॉफिट है इसने बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस पे लिया है और सेल्स को वाई पे लिया है, ठीक है। हम इनको उल्टा करेंगे, हम प्रॉफिट को वाई पे लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सेल्स को वी मूव टू एक्स एक्सिस and we brought the profit on the y-axis, right? Yeah. Now you can see the zero line is here. This is the zero line. यहाँ पे जीरो दिखेगा आपको। Yes. इसके नीचे -2 -4। तो इसका मतलब इस डायग्राम में वो कस्टमर भी है जिन्होंने लॉस दिए। ये देखो, ये नीचे वाला एरिया हमें रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर पेन से फिल्टर में प्रॉफिट लगाएंगे, दैट द प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो लॉस वाले हट जाएंगे। ओके, फिल्टर पेन कहाँ पे? ओके, हाँ, गॉट इट। ओके, हाँ। तो अब ये जो हमारा ये जो लाइन है, ये जीरो लाइन यहाँ आ गया है क्योंकि लॉस वाले कस्टमर हमने हटा दिए। गॉट इट, हाँ। ठीक है। अब आप देखो, अगर हम क्लस्टर आइडेंटिफाई करें तो आप देखोगे वो वाले कस्टमर जो हमें ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, मतलब जितना सेल्स उतना प्रॉफिट। ये सेल्स है, राइट, ये प्रॉफिट। तो ये एक के ऊपर एक ओवरलैप यहाँ हो रहे हैं। तो इसका मतलब इस सुपर स्टोर में जो कस्टमर्स हैं वो इस सेगमेंट के ज्यादा हैं, मतलब वो आपको सिर्फ $5,000 तक की सेल देते हैं और प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं देते, $2,000 तक का प्रॉफिट देते हैं, और वो चंक ज्यादा है। क्योंकि जो लोग ज्यादा सेल दे रहे हैं और प्रॉफिट भी दे रहे हैं, वो देखो कम होता जा रहा है। और इतनी सेल पे $20,000 वाली सेल वाला तो एक ही कस्टमर है ये। तो ये अगर आइडेंटिफाई करना है तो स्कैटर इज द बेस्ट वन। सो व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट दैट क्लस्टर कि कहाँ पे ज्यादा लॉक फॉल करते हैं आपके बिजनेस में, तो स्कैटर इज ऑलवेज द बेस्ट विजुअल। Okay. So this is negative profit analysis kind of stuff. Okay. But हमने तो नेगेटिव हटा ही दिया ना? हाँ, सॉरी, नेगेटिव प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट एनालिसिस काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है। तो बेसिकली जब आपको अपना कस्टमर जानना होता है कि कौन आपके लिए बेनिफिशियल है, तो यही आते हैं आपके उसमें। ये तो इक्के तुक्के हैं ये यहाँ पे। तो बेसिकली ये लोग ज्यादा हैं जो छोटी छोटी सेल देके जाते हैं और साथ में प्रॉफिट देके जाते हैं आपको। तो ये हुआ जैसे। तो इस तरह से ना आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि किस चार्ट का क्या काम है, और फिर आप वाइजली थोड़ा चूज कर पाओगे जब आप अपने डेटा पे एनालिसिस करोगे। ठीक है। अब जैसे हमने पाई चार्ट बनाया, राइट। अब पाई चार्ट में अगर मैंने डाल दिया सेल्स और स्टेट, तो इसका कोई सेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेट हमारे पास 48 है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे सब एक जैसा आ गया है, इट हैज नो सेंस। ठीक है। सो व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो पाई चार्ट इज ऑलवेज द रॉन्ग चॉइस। In case instead of 48 you have 8 or 18, तब भी समझ में आता है कि एटलीस्ट जो पाई बनेंगे वो दिखेंगे तो सही। Exactly. Right? Okay, got it. What will you do in this case? Which is the best option? So you just copy this and paste once more here. Okay. And now keep the simple Control C and Control V. Okay. Okay. Now on this, keep the control on this and click on tree map. तो ये सेम चार्ट सेम वैल्यूज के साथ में ट्री मैप बन जाएगा। ओके। नाउ दिस इज द बेटर ऑप्शन व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ फील्ड्स टू शो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने वैल्यूज y एंड x एक्सिस में डाल दूं एंड इट मेक्स अ सजेशन कि कौन सी वाली चार्ट इज अ बेटर ऑप्शन मेरे लिए? ऐसा कुछ नहीं है इसमें। दैट यू विल लर्न विद टाइम। ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ है ना कि बहुत ज्यादा है, देन ओवर पाई चार्ट प्रेफर ट्री मैप। इसमें ये बॉक्सेस का साइज, वही लॉजिक है पाई वाला, बॉक्सेस का साइज उसी बेसिस पे आता है जो कि सेल्स की वैल्यूज होंगी, और ये आपको बहुत क्लियरली दिखता है। मतलब इसमें छोटा छोटा भी थोड़ा कंबरसम नहीं होता जैसे इसमें हो जाता है। ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी प्रेफर ट्री मैप ओवर पाई एंड इन विच सिचुएशन। अगर 4 या 5 स्टेट है तो दोनों इक्वली वेल है टू गो टू काउंट। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको और दिखाती हूँ। लेट मी रीनेम इट। अच्छा, आपने न्यूज चैनल पे वो देखा है, वो एक नीचे ब्रेकिंग न्यूज सेक्शन आता है जो राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल होता जाता है। आपने कल दिखाया था उसमें
how you हाँ, can do. वो कैची होता है, इसलिए हम उसको ऐसे डालते हैं। अगर आप कोई भी स्क्रीन देख रहे हो तो आपकी नजर सबसे पहले उस पे जाती है, और आप उसको जल्दी से पढ़ भी लेते हो क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है, राइट? तो इसमें भी कुछ वैसा ही होता है, एंड दैट कम्स अंडर एडवांस्ड विजुअलाइजेशंस। तो आपको मार्केट प्लेस से मिलेगा, तो वी हैव टू गो टू मार्केट प्लेस, सो विल क्लिक ऑन दीज 3 dots एंड गो टू मार्केट प्लेस। So we'll write scroller and click on add. It will be added below the line here. Okay. So when we click on it, a pop-up will come. आप उसको उसी शेप में, जैसे विड्थ ज्यादा और ये कम, ऊपर नीचे कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है? और इसमें आपको क्या दिखाना है वो हम डालते हैं। जैसे हम दिखाना चाहते हैं सेल्स स्टेट वाइज, तो ये ऐसे आना शुरू हो जाता है। इंटरेस्टिंग। ठीक है, और इसमें भी सेम फॉर्मेटिंग ऑप्शंस रहते हैं, आप चेंज कर सकते हो चीजें, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, दिस दैट, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो ये आप मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग इट एट होम। श्योर। ठीक है, सो दिस इज स्क्रॉलर। ये ऑलमोस्ट हर डैशबोर्ड में आप देखोगे ही देखोगे, सब लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जब हम इस पे कर्सर रखते हैं, दिस ब्लैक बॉक्स इज कॉल्ड टूलटिप, राइट? नाउ अच्छा, पहले मैं आपको मैप बताती हूँ, ठीक है, फिर हम टूल टिप पे बात करेंगे। मैप, अब आपने देखा था हमने डेटा कैटेगरी से वी इन्फॉर्म्ड पावर बीआई इंजन दैट दिस इज माय कंट्री, दिस इज माय स्टेट, दिस इज माय व्हाट एल्स वी हैड, सिटी, राइट? तो अब हम मैप प्लॉट करेंगे उस इंफॉर्मेशन को यूज करके। सो दिस इज द विजुअल फॉर मैप, दिस वन, राइट? एक में भारतीय, अगर सिंस हम वी कुड आइडेंटिफाई सिटी, स्टेट एंड कंट्री, व्हाट अबाउट अगर सिंस वी कुड नॉट आइडेंटिफाई रीजन, तो फिर तो अगर हम लोग लेके आते तो क्या होगा फिर? रीजन के लिए कह रहे हो? रीजन के लिए, बिकॉज देयर वाज नो कैटेगरी, राइट? अभी यूज करके देखते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, अब सपोज मैं इसमें रीजन ही ले लेती हूँ, ठीक है, और सेल्स ले लेती हूँ। So see, it's not working, right? Because it's not understanding what this region is. Region, okay. Category इसको समझ नहीं आई, okay. हाँ, तो अगर हम इसमें अब स्टेट लेते हैं, सेल्स एंड स्टेट, ठीक है? स्टेट को it identified and it has created these bubbles also. Right. हाँ. ठीक है, तो जितनी भी ज्यादा सेल है उसी हिसाब से बबल का साइज दिया है इसने। Sure. हाँ. ठीक है, अब देखो इसमें आपको कुछ बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, कुछ कुछ देखते ही जो आपको क्लिक कर रहा हो, मुझे देख के बताओ एक बारी। Like dots. Anything? Oh yeah, they were all at one plane में है, ऊपर स्टेट्स में कुछ आए नहीं। नहीं, देखो इसमें क्या है, जैसे सिर्फ न्यूयॉर्क एंड कैलिफोर्निया दो बड़े हैं, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेल्स जो है वो इन एरियाज में इतनी बुरी नहीं है, बट बिकॉज सेल्स इनमें बहुत ज्यादा हाई है तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, राइट? जैसे एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी भी अच्छे हैं, वो बुरे नहीं है, बट क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं तो बाकियों का पता नहीं चलता। ओके, तो अगर आप उन 2 स्टूडेंट को निकाल के एवरेज निकालोगे तो बाकी स्टूडेंट्स भी प्रोमिनेंटली नजर आएंगे, दैट दे आर परफॉर्मिंग। Similarly here also, because of the New York and California's highest sales, we are not able to put attention to other states which are not bad at all. Okay. So what will we do? We will just right click and exclude New York and California. तो अब जो बाकी dots हैं, they are looking better, and probably we are able to look at the situation in a better manner, right? And if you go to the filter section, you will find New York and California under excluded section. So anytime you can just cross this up and bring them back. Okay. One more thing, when on this map you go to format section, right, which I have told you to homework, you will get here map styles करके एक option. इसमें themes रहती हैं, जैसे Arial, तो ये ऐसा दिखेगा। Okay. Dark,
लाइट, इसमें 5 ऑप्शन है आपके पास में, ग्रे स्केल एंड रोड. सो हाउ companies use the themes. So depending upon their brand colors, they use the theme. Okay. Okay. One more thing. From the data colors section, यहाँ पे you can change the color of the bubbles. Okay. ठीक है. यहाँ पे ये आपको कलर के बराबर में हर फॉर्मेटिंग सेक्शन में, हर विजुअल के फॉर्मेटिंग सेक्शन में, ठीक है, आपको ये एफएक्स नजर आएगा. राइट. क्या मतलब है इस एफएक्स का? एनी आइडिया? दिस इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग सुजाता. हाँ, या. ठीक है. इस पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, सिर्फ मैप में ही नहीं, किसी भी विजुअल में. ठीक है. अब देखो, इन बबल्स शो कर रहे हैं सेल्स, राइट? तो सेल्स जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा कंपनी के लिए. सो वी कैन से लोएस्ट द वैल्यू, शो इट इन रेड कलर, एंड हाईएस्ट द वैल्यू, शो इट इन ग्रीन कलर. हम इसको ओके करते हैं तो बबल्स अकॉर्डिंगली दिखाई देंगे आपको. जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, दे विल लुक ग्रीन. ओके. हाँ. So this is the kind of conditional formatting you can do with map or any other visual. Got it. हाँ. ठीक है. अब देखो, I was telling you about the customized tooltip. Right. Okay. So when you click on this bubble, you are able to see two information: state and sales, using which we have plotted it. Sure. So now what you want that whenever you put cursor on this bubble, you should able to see the top 5 customer of this particular state. मतलब अगर आप वॉशिंगटन पे कर्सर रख रहे हो तो वॉशिंगटन के टॉप 5 कस्टमर दिखें. ठीक है. टेक्सास पे कस्टमर रखो तो टेक्सास के टॉप 5 कस्टमर दिखें. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? We can bring customers. Basically, we want a visual in the tooltip as well. This is the requirement. अब मैं आपको सिखाती हूँ कि वो कैसे करना है. ठीक है. So you will go on a different page. This page, you will rename it anything, like I am saying PT tooltip. Okay, so this is step 1. Step 2 is you need to go to view and click on actual size. Okay. Third step, go to formatting and go to page information and make the tooltip on. ये 3 स्टेप आपको यहाँ करने हैं जो आपने नया पेज क्रिएट किया है. ठीक है. फोर्थ स्टेप आप वहां पे करोगे जिस विजुअल में आपको टूल टिप ऐड करना है. तो यहाँ पे मैप वाले पे. ठीक है. यहाँ पे आप आओगे, फॉर्मेटिंग में जाओगे और नीचे टूल टिप में जाके यहाँ पे पेज में आप वो वाला पेज सेलेक्ट कर दोगे जहाँ पे हमने उसको क्रिएट किया है. ओके. जब आप बबल पे जाओगे तो आपकी वो ब्लैंक विंडो आ रही है. जो भी विजुअल आप यहाँ पे बनाओगे ना, वो वहां पे टूल टिप में आएगा. ओके. हाँ. जैसे आपने यहाँ पे बनाया ये, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग कस्टमर नेम एंड सेल्स, और मैं यहाँ पे फिल्टर लगा रही हूँ टॉप 5. सो आई एम सेइंग कस्टमर नेम में जाके आई एम सेइंग टॉप N5 ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. ठीक है. एंड आई अप्लाई द फिल्टर. तो ये मेरे टॉप 5 कस्टमर आ गए. बट ये जनरल टॉप 5 कस्टमर है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के नहीं है. जैसे यहाँ पे आ रहा है सीन मिलर, तमारा, रेमंड. अगर आप मैप में जाते हो और आप यहाँ पे वॉशिंगटन पे रखते हो, इट्स शोइंग यू कस्टमर विच आर टॉप 5 फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट. लाइक यू कैन सी इन वॉशिंगटन वी हैव रेमंड, फ्रेंड, तमारा. आप यहाँ पे आओ, इट हैज डिफरेंट कस्टमर्स, द टॉप 5 ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट. This can also be done. Okay. So this is called customized tooltip. Got it. Okay. So whenever you practice, कम करे. इसका साइज, ये जो हम वहां गए थे ना, यहाँ पे व्यू में, यहाँ पे पेज व्यू होता है, फिट टू विड्थ, फिट टू पेज करके, ये सब आप ट्राई करके कम कर लेना. ओके. हाँ. ठीक है. जैसे फिट टू विड्थ किया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे फिट टू पेज करोगे तो चेंज हो जाएगा. Got it. ठीक है. हाँ. This is another very very interesting feature Power BI has. Customized. Right? Okay. So another thing
वाटरफॉल चार्ट एक चार्ट होता है, ठीक है। अगर मैं आपको 3-4 इयर्स का डेटा देती हूँ सुजाता, एंड यू जस्ट वांट टू चेक कि कौन सा वो टाइम पीरियड था जहाँ पे एज कंपेयर टू अर्लियर टाइम पीरियड सेल्स प्रॉफिट या कुछ भी फॉल कर गया, ठीक है। तो बेसिकली वी नीड टू चेक दैट फॉल। तो हम अगर मैनुअली करते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करना है, तो हम हर एक क्वार्टर को पीछे से कंपेयर करके देखेंगे कि कहाँ पे फॉल कर रहा है। ओके। बट यहाँ पे वो पूरा सब कुछ एक विजुअल में बना दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। बेसिकली हम सिर्फ उसको कॉलम्स बताएंगे और वो फॉल वो ऑटोमेटिक हमें रेड में दिखाएगा, ठीक है। सो विल गो टू मार्केट प्लेस एंड एड दैट विजुअल फर्स्ट। वाटरफॉल थर्ड वाला लिया है मैंने, ठीक है। ऐड किया, ये यहाँ पे ऐड हो गया, इसको लिया हमने। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक हमने लिया ऑर्डर डेट, सेल्स लिया, और हम इसको ब्रेक करेंगे सेगमेंट के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको पहले रीड कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ब्लू है दिस इज 2017, और ये सेम इंफॉर्मेशन 3 सेगमेंट्स में, मतलब 2017 की इंफॉर्मेशन 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो ये 2017 के सेगमेंट्स हैं, ठीक है। 16 का पूरे वाला और 3 सेगमेंट का, 15 3 सेगमेंट, 14 और 14 के आगे 3 सेगमेंट नहीं आ रहे हैं बिकॉज 14 इज द फर्स्ट ईयर इन द डेटा, सो यू डू नॉट हैव 2013 टू डेटा टू कंपेयर इट विद। ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आप कर्सर रखते हो तो आपको ये बताता है कि 2014 में इट वाज 89.7 एंड 15 में 75.2 व्हिच इज अ फॉल, राइट। तो इसमें वो फॉल आपको ऑटोमेटिकली रेड में दिखाया है। Okay, we didn't have to color code it. It did it for by itself. Nothing. Okay. And rest of the places it was all positive, so greener. और यहाँ पे चेंज इतना माइनर था कि वो दिख भी नहीं रहा है, जैसे देखो 128.8 and 4 दिख भी नहीं रहा है ग्रीन, राइट। यहाँ पे भी द चेंज वाज वेरी वेरी माइनर, 266.5 and 1, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैसे है, बेसिकली हमने ऑर्डर डेट लिया है, ये ऑर्डर डेट है जो एक्स एक्सिस पे है। तो आपको कैटेगराइज कैसे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल टेक कैटेगरी, ठीक है। वैल्यू में हमारी सेल्स है, ये जो वाई एक्सिस पे है, और ब्रेकडाउन में हम वो चीज डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेगमेंट डाला है, आप सेगमेंट की जगह शिप मोड भी ले सकते हो, है ना। तो बेसिकली आपको ब्रेकडाउन किस बेसिस पे करना है, आप यहाँ पे वो वैल्यू इसको फीड करोगे। Got it. Got it. So this is a very very beautiful chart doing a lot of stuff at the back end, but on few clicks for you. Okay. इसमें बहुत टाइम बचता है। आप इसको कंपेयर करो कि अगर आपको ये एक्सेल में करना होता आप क्या करते? Right. Waterfall is one chart you need to use wherever you need to check that fall. Okay. So it's understood. जब भी आप पावर बीआई सीख रहे हो ना मेरे साथ में, तो इस चीज पे बहुत ध्यान रखना है आपको कि कौन सा चार्ट कहाँ यूज करना है, वो चीज लर्न करना ध्यान रखना है आपको। Sure. Okay. अच्छा, आपने टेबल्स तो देखे ही होंगे एक्सेल में, और पिवट टेबल भी बहुत बनाए होंगे, ठीक है। तो पावर बीआई में पिवट टेबल को मैट्रिक्स कहते हैं। ओके। अभी देखो यहाँ पे ये टेबल भी है हमारे पास, मैट्रिक्स भी है, ठीक है। आपने टेबल पे क्लिक किया और अभी आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग सेगमेंट, ठीक है। दो तीन वैल्यूज ले लो, सेगमेंट, सेल्स, प्रॉफिट, इसके अलावा ईयर ले लेते हैं, ऑर्डर डेट ले लो, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन कितने वियर्ड तरीके से आ रही है, आप देखो कंज्यूमर में कितना रो क्रिएट किया है, मतलब जितनी बार भी वो सेल्स एंड प्रॉफिट बताएगा, कंज्यूमर की अलग अलग रोज हैं, फरवरी की अलग अलग रोज हैं, सो इट्स लाइक नो विजुअल एट ऑल, इट्स लाइक टेबल ओनली, राइट। अब आप इसको सेम को कॉपी करो जैसे हमने पहले पाई चार्ट को किया था, राइट, और इस पे क्लिक करके इस पे मैट्रिक्स पे क्लिक कर दो। ओके, नाउ द इंफॉर्मेशन इज कमिंग इन अ बेटर मैनर। ओके, इम्प्रेस को आप ओपन करोगे
तो ये आपका ईयर और क्वार्टर डेट में ऐसे डिवाइड करके एक्चुअली इट्स अंडरस्टैंडेबल एटलीस्ट. ओके, दिस इज टेबल, दिस इज मैट्रिक्स व्हिच इज लाइक अ पिवट टेबल इन एक्सेल. Got it. Okay. Okay. एंड बहुत बहुत जगह पे ऐसे पूछा जाता है, यू नो, व्हाई मैट्रिक्स ओवर टेबल, सो दिस इज द रीजन. Got it. Okay. मैट्रिक्स, जस्ट अ सेकंड. ज्यादा समझ आ रहा है आपको? Yeah. So far समझ तो आ रही है. Hopefully I'll be able to, but I नहीं, आप वीडियो भेजोगे तो yeah. हाँ, मैंने कल भी भेज दिया था आपको. Yeah. ओके, तो एक और विजुअल है यहाँ पे, इंफोग्राफिक डिजाइनर. ठीक है, जैसे इसका नाम ही बता रहा है आपको, तो ये बहुत सारी इन्फो आपको एक ही विजुअल में देगा. ठीक है, फ्यू क्लिक्स पे इसको हमने ऐड किया. ये आ गया, इस पे क्लिक किया. ठीक है, अब हम इसको डेटा सप्लाई करेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, भारती, अगर मुझे पता नहीं कि what visual I can get from the marketplace, I can always Google to see, right? कि ऐसा मुझे बनानी है and what visualization should I? You can do that also. और यहाँ पे ना, जैसे हम यहाँ जाते हैं तो कैटेगरीज भी बनी हुई है, जैसे फिल्टर रिलेटेड, मैप रिलेटेड, इंफोग्राफिक, गॉजेस, टाइम, तो उससे रिलेटेड ये बहुत सारे खुलते हैं. ठीक है, ऑल. और फिर सबसे बड़ी बात है कि इनके नीचे ना यहाँ इनका यूसेज भी लिखा होता है. जैसे वर्ड क्लाउड के नीचे लिखा है, क्रिएट अ फन विजुअल फ्रॉम फ्रीक्वेंट टेक्स्ट इन योर डेटा, और ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी दिया हुआ है. ओके, इंटरेस्टिंग. इससे भी काफी आइडिया लग जाता है. और वैसे ना पावर बीआई की साइट पे एक ब्लॉग सेक्शन है, you subscribe yourself there, so whenever they add any new visual they will mail it to you with entire description. Oh, interesting. तो आप उससे अपडेटेड रहोगे कि हो क्या रहा है. ओके. ओके, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां सब्सक्राइब कर लेना. That will be great. Sure. ये इन्फोग्राफिक डिजाइनर में फॉर एग्जांपल हमने ईयर लिया यहाँ पे, रीजन में वी आर टेकिंग क्वार्टर, और वी वांट टू मेजर इट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, और हमने रो में लिया फॉर एग्जांपल रीजन. अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, तो आप ये देखो, मैंने 4 क्लिक्स पे कुछ 16 विजुअल्स क्रिएट किए. ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे एक्स एक्सेस पे ईयर्स हैं, 2014, 15, 16, 17. वाई पे वी हैव रीजन्स, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. राइट. और यहाँ पे ये मुझे क्वार्टर वाइज सेल्स मूवमेंट दिखा रहा है, जैसे क्वार्टर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में सेल्स कैसे मूव कर रही है. तो हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 2014 में सेंट्रल में, ठीक है, सेल्स जो थी फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में, थर्ड क्वार्टर्स में इंक्रीज हुई एंड देन इट फेल. राइट. We can see the sales movement very clearly. Instead of quarter, in case you are taking here the month, so it will show you the movement month wise like this. Okay, so when you want to see the movement of sales with a lot of bifurcation, right, so this is the best visual. Okay. कुछ आपको साथ में दिखाई दे रहा है, हर ईयर का, हर रीजन का, और आपके ऊपर है आप इसको कैसे यूज कर रहे हो. आप रो में रीजन के अलावा कुछ और भी ले सकते हो, जैसे आप इसमें रीजन के अलावा यहाँ पे सेगमेंट ले सकते हो, क्योंकि आपको सेगमेंट, रीजन से नहीं, आपको सेगमेंट में मूवमेंट्स देखनी है. बट यहाँ पे इट रिकॉग्नाइज रीजन, वो हमारे मैप वाले विजुअलाइजेशन में डिड नॉट रिकॉग्नाइज रीजन दो. हाँ, लेकिन यहाँ पे हम मैप नहीं बना रहे हैं ना. ओके. वो मैप पे आइडेंटिफाई नहीं करता है उसको. ओके, बिकॉज़ इट डिडंट रिकॉग्नाइज. यहाँ पे इसको खाली एक्सेस पे पुट करके सम अप करना है. राइट. यहाँ पे तो वो लोकेशन दिखाने वाला पॉइंट आ जाता है. हाँ, ठीक है. हाँ, ठीक है, तो ये आपको कब यूज करना है, आपको समझ में आया? If I want to see all the years on the same visualization, this would be the one to go for. Right. Okay. हाँ. ठीक है, अभी और दिखाती हूँ. अच्छा, have you ever used funnel chart? Yes, I did. Okay. So you must be knowing the purpose also. Still, let me just. This is a funnel chart, right? मान लो मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी लिया और I want to show my sales सब कैटेगरी वाइज.
तो ये क्या करता है, जिस सब कैटेगरी की सेल्स सबसे ज्यादा है उसको बेस बना के 100% मानता है, जैसे हम परसेंटाइल देखते हैं, राइट, हाँ, और बाकियों की जो परसेंटेज है वो उस बेस को 100 मान के कैलकुलेट होती है, और ये फनल की शेप में ऐसे बन जाता है। So basically when you want to compare the items in one particular column with each other, then this is the best visual. Okay, this is simple to plot. It has only two fields. One is group. So basically, which is the column you want to group your data, right? And another one is values. यहाँ पे आप profit भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. तो ये clear है? इसका usage. This is funnel chart. ठीक है? We will discuss ribbon chart also. Okay. Just a second. भारती, हमारी कंपनी में we are not big on visualization. We are big on reports. Like we hardly visualization से बनेगी अभी ना? Okay. तो अगर मैं like if I query a database, bring that data, create a visualization, can I convert it into a report? Yes. Oh, okay, that's good. Okay, so ribbon we will use. Okay. Do we have ribbon here, or is this is a ribbon chart? Okay. So when we click on it, अभी आपको ये लगेगा कि ये तो स्टैक चार्ट, आपने कभी यूज किया है ये? नहीं. अच्छा, आप जब इसको अभी बनाओगे आपको लगेगा कॉलम चार्ट के जैसे है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी. ठीक है? तो आपने लिया डेट, सेगमेंट एंड सेल्स. ठीक है? एक्स एक्सिस पे यू कैन सी द ईयर्स, एंड ये जो तीन कलर है ये तीन सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लाइट ब्लू कंज्यूमर, डार्क ब्लू कॉर्पोरेट एंड ऑरेंज इज होम ऑफिस. ओके. एंड द बार्स हैव बीन प्लॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स फिगर. ठीक है? ओके. तो अगर आप कॉलम चार्ट प्लॉट करते हो तो आपको सिर्फ ये बार्स नजर आएंगे 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है? आपके बीच का एरिया व्हाइट दिखता है उसमें. ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 14 का डेटा है, ये 15 का है, find out the change in percentage. What will you do? You will just minus 2015 sales. You will take the difference of sales in both the years and you will calculate the change, percentage change. Sure. Ribbon chart में क्या होता है? When you are putting the cursor on this light colored area, it will show you the change in percentage automatically. Oh. So this is the difference between column chart and ribbon chart. Okay. So it will do the analytics for me. Okay. Yes. So 2014-15 का यहाँ पे दिखेगा आपको, 15-16 का यहाँ पे दिखेगा, 16-17 का यहाँ पे दिखेगा. So in case you want to rank here, the consumer rank वो क्या है? I also have no idea about this. Okay. Yeah. So this is the usage. Sure. People prefer it over column chart because this is something additional you are getting free when you are using this visual. So no harm going ahead with this one. Sure. So this is the change. Okay. Word cloud पता है आपको क्या होता है? मैं आपको पहले दिखाती हूँ फिर देखेंगे. आपने ये वर्ड क्लाउड ना बहुत बार ऑफिसेज में रिसेप्शन पे लगे देखा होगा जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, या आपने देखा होगा मैनेजर्स के पीछे बोर्ड्स पे वो लोग बहुत लगाते हैं ये. Sure. हमारे जहाँ पे जिस ऑफिस में मैं काम करती थी वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ को ऐसे लगाते थे इस फॉर्मेट में बना के हर महीने. मोटिवेटेड कि अच्छा लगता है, उसका नाम हाईलाइट होकर दिख रहा है, बाकी एम्प्लॉयज का नाम छोटा छोटा दिख रहा है, उसका बड़ा दिख रहा है. Okay. तो हाउ टू क्रिएट इट. ठीक है? तो बेसिकली ये वर्ड क्लाउड है जो हमने लाइब्रेरी से ऐड किया है. ठीक है? इस पे जब हम क्लिक करेंगे और मान लो हमने इसको सप्लाई किया सब कैटेगरी एंड सेल्स, तो ये क्या करेगा, जिस भी सब कैटेगरी की सेल्स ज्यादा है उसको सबसे बड़ा दिखाएगा. फिर सेकंड हाईएस्ट सेल्स वाले को उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये ऑटोमेटिक ऐसे बना देता है. Okay. Okay, this is not used much on the dashboards or in the boards, but this is used to display in the company boards basically.
ठीक है, बिकॉज पावर बीआई विजुअलाइजेशन टूल है तो ये इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था ना, ये लोग सर्वे करते रहते हैं। दे वांट टू सर्व एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। Got it. हाँ. So they create a visual and add it to the library. पहले लोग क्या करते थे, इसको वो मैनुअली कैलकुलेट करके फिर वो जो ग्राफिक्स के टूल होते हैं ना, कैनवा होता है, एडोब होता है, फोटोशॉप होता है, वहां पे जाके बनाते थे इसको। थोड़ा सा इसका साइज बड़ा, फिर इसका इससे छोटा, इसका इससे छोटा। राइट. तो वो रिक्वायरमेंट इसने एक विजुअल से खत्म कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है। ओके। टोर्नेडो चार्ट कभी यूज किया सुजाता? ओके। तो ये भी एक एडवांस्ड विजुअल है। वी हैव टू एड इट फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये दिस इज टोर्नेडो। अगर आप यहाँ पे इसका डिस्प्ले देखोगे और पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है, कंपेयरिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल्स बिटवीन टू ग्रुप्स। ओके, एंड ऐसे दिखता है, एक वेरिएबल यहाँ, एक यहाँ, साइमल्टेनियसली यू कैन कंपेयर। ठीक है, इसको ऐड किया, ये आया। अब जैसे हमने फनल चार्ट में सब कैटेगरी एंड सेल्स लिया था ना, तो हम इसमें सब कैटेगरी, सेल्स और सेल्स के साथ प्रॉफिट भी लेंगे। तो ये क्या कर रहा है, इस सब कैटेगरी को विच इज फोन्स, सेल्स और प्रॉफिट दोनों साइमल्टेनियसली दिखा के आपको दिखा रहा है। ओके, गॉट इट। हाँ. टोर्नेडो चार्ट, इसकी शेप भी वैसे ही है ना, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है। Got it. Okay. तो इसका यूसेज ये है, जब आप किसी एक फैक्टर को, एक कॉलम को टू वेरिएबल्स पे साइमल्टेनियसली देखना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, यूज टोर्नेडो। Okay. Okay. One more interesting one. We have bubble chart. ठीक है, वो भी एडवांस्ड विजुअल्स में है। सो लेट्स ऐड इट। इसको लिया हमने ऐसे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, बबल नेम, क्लस्टर नेम एंड वैल्यू। ठीक है, अब मान लो हमने वैल्यू में लिया सेल्स। ओके। ठीक है, बबल में मैं ले रही हूँ सब कैटेगरी, अभी मैं आपको बताऊंगी मैंने ऐसा क्यों लिया। ठीक है, क्लस्टर में मैंने लिया सेगमेंट। अब मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको ये सारे समझ आ जाएंगे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इसमें ये जो बड़े वाले सर्कल्स है ना, बाहर वाले 3, these are called clusters। ठीक है, जो अंदर वाले सर्कल्स हैं, these are called bubbles। राइट। ठीक है, और चाहे वो क्लस्टर हो या बबल हो, सबका साइज उस हिसाब से लिया गया है कि उसमें सेल्स कितनी है, क्योंकि हमने इसको सेल्स दिया है। ओके। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं किस क्लस्टर में हाईएस्ट सेल है, तो आप स्ट्रेट अवे मुझे बोल दोगे लाइट ब्लू, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट, दिस इज द थर्ड हाईएस्ट। सिमिलरली ये जो अंदर के बबल्स हैं, उनमें भी देखते ही पता चल रहा है कि सबसे हाईएस्ट सेल्स यहाँ पे फोन्स है, यहाँ पे ये चेयर्स है, और यहाँ पे फोन्स है। ठीक है, तो बेसिकली व्हेन यू वांट टू शो योर सेल्स पार्ट विजुअली, दिस इज कि आप यहाँ पे बाहर ना सेगमेंट की जगह कुछ भी ले सकते हो, शिप मोड ले सकते हो, रीजन ले सकते हो। तो बेसिकली जब आपको ये इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, विजुअली देख के जानना है कि कहाँ सेल ज्यादा है या कहाँ प्रॉफिट ज्यादा है, कुछ भी ले सकते हो। तो इस तरह के विजुअल्स बनाए जाते हैं, है ना। जैसे मैनेजर्स की आदत होती है ना, जब सामने एम्प्लॉइज बैठे होते हैं तो अच्छा कौन से क्लस्टर में ज्यादा है, अच्छा फिर उसकी कौन सी कैटेगरी में ज्यादा है, उसमें अब सामने वाले एम्प्लॉय को कैसे रटे थोड़े पड़ा है, देख के बताएगा ना वो चीजों को। लेकिन मैनेजर्स की आदत होती है कि जब हम पूछे हमें जवाब मिल जाए। राइट, ये बहुत चीजों को एक साथ आंसर करती है। तो ये इट इज एक्चुअली आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दिस पर्टिकुलर विजुअल। डेफिनेटली, यस। राइट, सो दिस इज बबल चार्ट। आप जब यहाँ पे जाओगे, आपको यहाँ पे ऐसे बहुत मिलेंगे, मतलब एक्सप्लोर करने वाली बात है, इंटरेस्ट पे बात है कि कहाँ आपको कितना सीखना है। Got it. Right?
ये बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। Okay. ठीक है, अभी मैं डेक्स शुरू नहीं करवाना चाहती हूँ, मैं आपको 2 क्वेरीज बताती हूँ अभी। ठीक है, अब मान लो आपने ये ऑर्डर्स वाला जो डेटा था ये एनालाइज कर लिया। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि इसके बेस डेटा में और डेटा आप ऐड कर दो। तो ये जो जितने भी आपके विजुअल्स हैं ये रिफ्रेश हो जाएंगे, Okay. अपडेट हो जाएंगे विद दैट डेटा। नाउ द क्वेश्चन इज how you will add more data at the end of this particular table. Okay. Right? तो कैसे करोगे आप? अब मान लो आपको इस डेटा में ये 2018 वाला डेटा ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करके विल गो टू एडिट क्वेरी। किसी भी टेबल पे राइट क्लिक कर सकते हो आप। ठीक है, आप ये पावर क्वेरी एडिटर में आ जाओगे। राइट, जहाँ पे हमने कल ये सब किया था। हाँ, ठीक है, अब आपको यहाँ पे टॉप पे 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरीज। ठीक है, अपेंड का मतलब होता है रोज ऐड करना, और मर्ज का मतलब होता है कॉलम्स ऐड करना। ओके ओके, ठीक है, तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अपेंड क्वेरी, बिकॉज हमें एक के नीचे एक और डेटा ऐड करना है। ठीक है, जब आप इस ट्रायंगल पे क्लिक करोगे यू विल गेट 2 ऑप्शंस, अपेंड क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज एज न्यू। क्या डिफरेंस है, जब आप अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करोगे तो जो आपकी एग्जिस्टिंग टेबल है उसी के नीचे दूसरी टेबल ऐड हो जाएगी। लेकिन जब आप अपेंड क्वेरीज एज न्यू करोगे तो दोनों टेबल को मिला के ऑल टुगेदर न्यू टेबल बन जाएगी। ओके ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब मान लो मैंने अपेंड क्वेरीज एज न्यू किया, राइट। अब ये आपसे पूछ रहा है यू नीड टू अपेंड 2 टेबल्स और मोर देन 2 टेबल्स। तो आई एम सेइंग 2 टेबल्स, माय फर्स्ट टेबल इज ऑर्डर्स, सेकंड टेबल इज 2018. Okay, it's based on because it has 3 of those. Okay, got it. And you are saying okay. So what happened, another 4th table came which has all the data from table orders and 18. So this is how you would be updating your base data and your reports will be refreshed automatically. बस आपको करंट टेबल को ही एडिट करना होगा। मैंने किया नहीं क्योंकि मेरे को आपको उसी से डैशबोर्ड सिखाना है। ओके, ठीक है, क्योंकि अपेंड तो हमने यूज नहीं की ना विजुअलाइजेशन में, ये टेबल तो अभी आई है, तो आपके विजुअल्स अभी रिफ्रेश नहीं होंगे क्योंकि वो तो हमने ऑर्डर्स से बनाए हैं। तो आप क्या करोगे, ऑर्डर्स टेबल को ही अपडेट करोगे। तो हमने अभी वही किया, राइट? नहीं, हमने एक नई टेबल बनाई ना। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, अपेंड क्वेरीज एंड गॉट इट। हाँ। तो अगर if I want the visuals to be updated, I would go for append queries. राइट, ठीक है। अच्छा, अब हम ये मर्ज क्वेरीज भी यूज करके देखते हैं। But under what circumstances would I go for the second option जो हमने किया अभी, append queries? बहुत लोग हर टेबल का बैकअप रखना चाहते हैं, मतलब बहुत लोगों की आदत नहीं होती वो हर चीज की मल्टीपल कॉपीज, राइट, ओके, खराब ना हो जाए, गलत ना हो जाए। एक रख लेता हूँ। Can I do both? Yes, you can do both one by one. Okay. मेरी क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, कितने ही वो बहुत होशियार थे, इंटेलिजेंट थे, बट व्हेन दे यूज्ड टू कम ऑन दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, they were never confident. Okay. Copy 1, copy 2, copy 3, और फिर 2 महीने बाद वो खुद ही भूल जाते थे कि यूज कौन सा करना है। होता है ऐसा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे। तो प्रोबेबली माइक्रोसॉफ्ट ने भी वही सोच के ऑप्शन बनाए हैं। अच्छा, अब हमें कॉलम ऐड करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा यहाँ पे जब आप ये कर दोगे यू नीड टू क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई, राइट। हाँ, ओके, तो ये 4th टेबल आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, हाँ, और ये पॉपअप दिख रहा है आपको, राइट। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे मॉडल वाले सेक्शन में वो रिलेशनशिप्स भी क्रिएट कर रहा है 4th टेबल के साथ में। ओके, अभी इसको आने दो यहाँ पे, फिर मैं दिखाती हूँ आपको, लेट इट कम। हाँ, आ रही है टेबल, आ गई। ठीक है, अपेंड 1। अब आप मॉडल में जाओगे तो वो टेबल वहां पे आ जाएगी, और जो रिलेशनशिप वो आइडेंटिफाई कर पाया होगा उसने बना दी है, ये देखो। ठीक है, तो ये है, ओके। एनीवेज नाउ ये जो टेबल था हमारा रिटर्न, इसमें वो वाले ऑर्डर आईडीज थे जो रिटर्न हो गए।
तो वैसे तो इस टेबल, इस कॉलम को हमें ऑर्डर्स वाले में ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द रिलेशनशिप इज ऑलवेज देयर, तो हम वो एक्सेस कर सकते हैं, है ना? राइट, हमने हाँ. लेकिन अगर इन केस यू वांट टू इंपोर्ट वन कॉलम ऑफ अनदर टेबल इन वन टेबल, तो वो कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए, ठीक है? राइट. वो कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे, रिटर्न वाला कॉलम इसमें इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्डर आईडी तो इसमें है। हाँ, हाँ. फॉलो द सेम थिंग, गो टू एडिट क्वेरी, ठीक है? वी विल गो टू मर्ज क्वेरीज, यहाँ पे जो ये ऊपर सेक्शन है, अगेन वी हैव टू ऑप्शंस, मर्ज क्वेरीज एंड मर्ज क्वेरीज एज न्यू, ठीक है? तो हम मर्ज क्वेरीज एज न्यू पे गए यहाँ पे, और यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि आपको कौन कौन से टेबल के कौन कौन से कॉलम कनेक्ट करने हैं। तो हम कह रहे हैं कि ऑर्डर्स टेबल हमारी पहली टेबल है, सेकंड टेबल हमारी रिटर्न्स टेबल है, ठीक है? इसमें जो कॉमन फील्ड है दैट इज ऑर्डर आईडी, दोनों को हाईलाइट किया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कैसे ज्वाइन करना है। इट्स गिविंग मी 6 ऑप्शंस। पहला है लेफ्ट आउटर, उसका मतलब है ऑल फ्रॉम फर्स्ट एंड मैचिंग फ्रॉम सेकंड, राइट. ठीक है? राइट कॉर्नर, राइट आउटर सॉरी, ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट, राइट. फुल आउटर, ऑल रोज फ्रॉम बोथ, राइट. इनर ओनली मैचिंग रोज। ऐसे ही लेफ्ट एंटी, राइट एंटी करके 6 ऑप्शंस हैं, ठीक है? हमने फर्स्ट वाला यूज किया लेफ्ट आउटर, विच मींस ऑल फ्रॉम फर्स्ट एंड मैचिंग फ्रॉम सेकंड, और इसको हमने ओके किया, ठीक है? तो क्या हो रहा है, अभी ये काम कर रहा है। तो ये एक नया टेबल आ गया, मर्ज 1, ठीक है? इसको मैं अगर आगे जाके देखती हूँ लास्ट में, तो एक पूरा का पूरा टेबल इंपोर्ट हो गया, वो कॉलम नहीं टेबल ही आ गया। ओके. यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इसको एक्सपेंड करने का, ये एरो दिख रहे हैं? इस पे क्लिक किया और ओके किया, तो ये पूरी टेबल खुल के एक्सपेंड हो गई, दोनों कॉलम आ गए इसके, ऑर्डर आईडी, रिटर्न। ओके. हाँ. यहाँ पे इट गॉट अ वैल्यू, इट हैज एडेड दैट, एट द अदर प्लेसेस इट हैज एडेड नल, राइट. ठीक है? अब क्योंकि ऑर्डर आईडी हमारे पास ऑलरेडी है हमारी टेबल में, वी जस्ट वांट रिटर्न्ड वाली वैल्यूज, राइट. तो आप इसको राइट क्लिक करके रिमूव कर दो कॉलम को, एंड ऑल इज डन, क्लोज एंड अप्लाई। ओके. इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वी आर यूजिंग मॉडलिंग, तो हम उसको वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर कभी कॉलम ऐड करना पड़े, सो दिस इज द वे। सो बेसिकली इट हैज 2 क्वेरीज, मर्ज क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज। गॉट इट. हाँ. ठीक है? तो ये सारा आप प्रैक्टिस करोगे, और वी हैव क्लास नेक्स्ट सैटरडे नाउ, राइट? श्योर. तो नेक्स्ट सैटरडे मैं आपको पूरा रिपोर्ट डिजाइन करना, जो मैंने आपको दिखाया था ना सैंपल, वो बटन्स वगैरह कैसे बनेंगे, कैसे हम बटन से लिंक करेंगे सारे विजुअल्स को, ठीक है? वो सारा सिखा के वी विल पब्लिश इट ऑन क्लाउड। श्योर. ओके. ठीक है? तो अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ आपको, और एक चीज और क्या भेजनी थी मुझे आपको, ये वाली शीट भी भेज, हमने काम किया है अभी। श्योर प्लीज. हाँ. ठीक है, मैं आपको दोनों चीजें मेल करती हूँ। ओके. ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करके सेम टाइम वी विल मीट नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है. एंड भारती, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज पार्ट ऑफ योर कोर्स, बट I'm always saying that my company is more on reporting than visualization. Like as of now, we are zero on visualization. ओके. हाँ, तो आपका जो वो रिपोर्टिंग से मतलब है, वो काइंड ऑफ दैट डैशबोर्ड व्हिच आई शोड टू यू? No dashboard. We only have one dashboard, but visualization कुछ होती नहीं है. It's basically, you have attributes and then metrics. ऐसा होती है. Okay. So do you have any sample what exactly you want? I can send you any sample report you want me to send you? Yeah. Please mail it to me. Sure. Yeah, I will do that. So basically ये होता है कि हम लोग we go to the database, then हम लोग in MicroStrategy में language बोल रही हूँ, then we make facts, metrics and attributes, and then requirement के हिसाब से we just design it the way they want it, and then you are using as of now for the report making Narrowcast, MicroStrategy. Okay. So just फिर हम लोग वो भेज देते हैं however they want it, if they want it in their email, or they can access it coming in the web, in the MicroStrategy web, और फिर वो खुद से they slice and dice. तो आप मुझे एक बारी, हाँ, आप एक बारी मुझे मेल कर देना वो।
Sure, I will send it to you. Yeah, I'll just send a sample kaisa hota. Maybe I'll just export it in Excel and send it to you. Is that okay? Yeah, that's fine. Okay, I'll do that. Huh. Okay. Good night, Sujata. Okay, thanks, Bharti. Bye.